jobs. We welcome you to this session, Dr. Johari. Thank you so much, Rajata. We also have with us on the panel Dr. O.P. Sharma, Director NCID. He is an expert in the area of innovation and startups. We welcome you, Dr. Sharma. Thank you. India has the largest MSME base in world after China. MSMEs or micro, small and medium enterprises have emerged as a major pillar of the Indian Economics Foundation. Indian Economies Foundation, The sector provides a wide range of services and is engaged in the manufacturing of over 6,000 products, mainly from traditional to high-tech items. In terms of numbers, micro, small and medium enterprises contribute a staggering 30% of the country's GDP, as well as approximately 45% of manufacturing output and approximately 48% of exports. Given the Government of India's push for a self-reliant economy or Atmanirbhar Bharat, the Indian MSME sector is poised for growth and is seeking greater integration with major global value brands. Consistent support, technological advancement, infrastructure development and the modernization of the country, these are some of the contributions of MSMEs. MSMEs contribute to job creation, economic development and local entrepreneurship. Registering as an MSME can have significant implications for a business growth, sustainability and provide numerous benefits including financial incentives and government support programs. MSME registration opens the doors to financial support from the government, including subsidies on loans, reduced interest rates and credit guarantees. This financial backup can significantly enhance any enterprise or business capacity for expanding the business and even funding existing expenses. This is extremely significant for businesses seeking financial assistance and industry-specific support. Any business or a startup in India should have a scalable business model with a high potential for employment generation or wealth creation. Before registering as an MSME for a business, it is important to have a careful consideration of factors such as business nature, goals, industry dynamics, and regulatory compliance. We'll be discussing more about starting a business as a micro, small and medium enterprise in today's session, and also it is highly significant for any startup also in its initial stages. So let us now ask our experts to tell us more on this topic. Dr. Johari, please tell us more about micro, small and medium enterprises, and we would also like to know how it can be differentiated from a startup. Thank you, Dr. Sujata, for having me here in today's session. You have very nicely explained what all MSME is all about and how it is contributing to the society as a whole. Now, to begin with, as you very well said that MSME means micro, small and medium enterprise. And of course, the definition of micro, small and medium enterprise, it varies from country to country. Each country has a different set of criteria of naming it as a micro, small and medium enterprise. Now, basically the criteria could be the turnover of the company, the number of people who are employed in the company, and the investment which has been put into the company. But when we're talking about India, the Micro, Small and Medium Development Act 2006, firstly, it has divided the micro, small and medium enterprise into two categories. Firstly, the manufacturing enterprise and the service enterprise, which are also called as the manufacturing sector or the service sector. So we can see that micro, small and medium enterprise can both work as in the manufacturing as well as in the service industry. And the classification of MSMEs in India, which has been,
the government of India, the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprise, they have categorized it as when we talk about micro, it means they should have an investment of up to 1 crore and turnover of up to 5 crores. Coming on to the small industries or the small enterprise, the investment should not be less than. They are characterized by disruptive innovations most of the time. Yeah. And the other thing is most of the startups, they fail mostly due to lack of funds or financial resources. So, Dr. Sharma, would you throw some light on how starting a business and then taking it up as an MSME can provide a beneficial edge to grow it later on into a startup? So, could you please tell our students something about this? In fact, what Dr. Johari has highlighted, MSME is a kind of business to be started at local level with a small kind of venture. And when we talk about the startups, what she has also pointed out, that it should be having an innovative angle, should be scalable, should have a larger manpower, etc. Those all aspects are there. But what I think, MSME can be a very good ground for setting up a startup. Right. Because anybody who is thinking to go in the direction of setting up a startup, it will be good to start with MSME, maybe micro level, small level or medium level, whatever is her कैपेबिलिटीज रिसोर्सेज आर देयर, उसी के हिसाब से अगर वो एक अपना MSME का एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, एक एंटरप्राइज स्टार्ट करते हैं, तो वहाँ एक सबसे बड़ा फायदा क्या रहेगा कि इट विल सेट एज ए फाउंडेशन फॉर दी स्टार्टअप. आपको ये पता चल जाएगा कि मुझे बिजनेस करने में किस तरीके की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्या क्या मुझे स्टेप्स लेने हैं. क्योंकि ऑलमोस्ट अगर हम पैरेलल देखते हैं दोनों को, जो स्टेप्स हैं, चाहे आपको MSME का कोई एंटरप्राइज शुरू करना चाह रहे हैं या आपको स्टार्टअप करना चाह रहे हैं, दोनों के केस में आपको एक बिजनेस आइडिया तो होना जरूरी है. हाँ, हो सकता है कि आपका अगर लोकल बिजनेस कर रहे हैं, कोई एक ग्रोसरी स्टोर सेटअप करना चाहते हैं साथ में, वहाँ यू मे नॉट बी थिंकिंग टू मेक इट इन ए लार्जर स्केल और ग्लोबलाइज और बहुत बड़ा नहीं करना चाह रहे होंगे, लेकिन बिजनेस आइडिया बहुत जरूरी है. उस बिजनेस आइडिया के साथ में आपको ये भी देखना जरूरी है कि उसको वो आप उस जो आपके यूजर्स हैं, कस्टमर्स हैं, वो कौन होंगे, आपका उस एरिया में है कि नहीं. सेम थिंग यू विल हैव टू डू फॉर दी स्टार्टअप्स ऑल्सो. तो एक तो सबसे पहली बात ये आती है कि MSME अगर हम स्टार्ट करते हैं तो वहां वो आपका बहुत अच्छा एक स्टार्टअप का ग्राउंड तैयार होता है, एक फंडामेंटल फैक्टर फाउंडेशन आपका स्टार्टअप का एक बनता है. शायद एक तरह का सेफ्टी नेट भी मिलेगा, जो सेफ्टी नेट भी मिलेगा और आपको एक अपना एक्सपीरियंस मिलेगा कि एक्सपीरियंस के आधार पे यू कैन थिंक ऑफ स्केलिंग अप योर बिजनेस. एंड उसमें फिर अगर आप सोचते हैं कि आपको बहुत कुछ इनोवेटिव एंगल ला करके और फिर उसको स्केल अप करते हैं, तो दैट कैन बी ए गुड थिंग. तो पहली चीज यह है कि दिस विल सेटअप एज ए फाउंडेशन फॉर ए स्टार्टअप. अगर हम MSME की बात करते हैं, चाहे वो एक्सपीरियंस गेन की बात हो या प्लेटफॉर्म बनाने की बात हो, कस्टमर्स के साथ में किस तरीके का रिलेशनशिप की बात हो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. और दूसरा यह है कि इट विल बी ए गुड ग्राउंड फॉर एक्सपेरिमेंटेशन. बिकॉज कई बार क्या होता है कि अगर हमारे दिमाग में कोई आइडिया है, आई हैव टू एक्सपेरिमेंट, आई हैव टू एग्जीक्यूट इट, तो आपको कहीं ना कहीं उसको देखना पड़े, मैं करूं कैसे उसको. तो अगर आप MSME के रूप में इस तरीके से करना चाह रहे हैं तो आप उसको एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं. आप देख सकते हैं कि हाउ मच सक्सेसफुल और फेलियर यू आर, और उसमें क्या क्या आपको इम्प्रोवाइजेशन की जरूरत है, क्या चेंजेस की जरूरत है. अकॉर्डिंगली यू कैन प्लान फॉर ए बिगर सेटअप एंड दैट कैन बी ए स्टार्टअप ऑल्सो. एक चीज और होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं अपने व्यूअर्स हैं उनके लिए बताना चाहूंगा. बिकॉज वंस यू सेटअप ए MSME और रजिस्टर इट विद दी कंसर्न्ड डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री, तो आपके बहुत सारे ऐसे रास्ते खुल जाते हैं, एक्सेसिबिलिटी के रास्ते खुल जाते हैं, जो स्टार्टअप के लिए बहुत जरूरी होते हैं. क्योंकि आपके पास में अगर MSME का एक लाइसेंस आता है, इफ यू आर रजिस्टर्ड एज MSME, देन यू विल गेट एक्सेस टू सेवरल काइंड ऑफ स्कीम्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिनमें अदरवाइज आपको डायरेक्टली अगर जाएंगे तो विल नॉट बी अलाउड. अगर आप MSME रजिस्टर्ड हैं तो आपको चाहे वो फंडिंग की बात हो या कहीं और डिफरेंट लाइसेंसेस की बात हो या कहीं और किसी तरीके की और सपोर्ट सब्सिडीज की बात हो या लोन लेने की बात हो, कहीं भी बहुत सारे जो रास्ते हैं वो आपके खुल जाते हैं MSME रजिस्टर्ड होने के बाद में. और उसके बाद अगर आप स्टार्टअप पे जाते हैं, देन इट बिकम्स ईजियर
to get the grants, loans, funding and then those all things. Yes. ये बहुत important aspect है. और एक सबसे बड़ा important aspect एक और भी है कि जब आप MSME के रूप में कोई एक बिजनेस शुरू कर रहे हैं, मे बी ऑन ए स्मॉल स्केल, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक बड़ा बिगर जो बिजनेस है उसका कहीं एक चेन का पार्ट होता है वो. सो यू बिकम ए पार्ट ऑफ द सप्लाई चेन. सो दैट काइंड ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ सप्लाई चेन जो स्टार्टअप के लिए बहुत जरूरी है, ये आपका बन जाता है. तो ये अगर हम MSME को रजिस्टर करते हैं, स्टार्ट करते हैं ऑन ए स्मॉल स्केल, एंड देन इट कैन गिव यू वाइडर accessibility, wider scope for a startup. So what all opportunity areas are there? जैसे telecommunications है, even pharmaceuticals है, healthcare है, और कौन कौन से areas हैं जिसमें MSMEs grow कर रही हैं और उनके लिए opportunities हैं? Okay, sir, right. इनफैक्ट जैसे डॉक्टर गीतिका ने बताया कि 2 सेक्टर्स की बात करते हैं MSME में, मेनली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर. Yes, sir. अगर हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में देखते हैं और बिजनेस MSME के रूप में जाते हैं तो एक बहुत ही कॉमन और हम सबके लिए बहुत यूजफुल है वो एक टेक्सटाइल सेक्टर है. टेक्सटाइल में तो इतना सारा, चाहे वो प्रोडक्शन की बात हो या चाहे वो कॉटन हो, सिल्क हो या वो से रिलेटेड हो, और उसमें अपने लेवल पे आप काम कर रहे हैं, फैशन डिजाइनिंग की बात करते हैं, वहाँ बहुत कुछ आप कर सकते हैं. लेदर का भी एक ऐसा एरिया है, लेदर इंडस्ट्री का, लेदर जो उनके डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, नॉट ऑन अ वेरी बिग स्केल, जैसे आप बेल्ट बना रहे हैं, बैग्स बना रहे हैं, या आप छोटे छोटे आइटम्स बना रहे हैं, दैट कैन बी ए काइंड ऑफ एक बहुत अच्छा एक प्रोडक्ट हो सकता है. फूड प्रोसेसिंग की जब हम बात करते हैं तो ये तो बहुत ही बड़ा एरिया है जो आज की डेट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज ऑल्सो एनकरेजिंग, सपोर्टिंग एंड प्रोमोटिंग टू सेटअप startups, this kind of enterprises, businesses in the field of food processing. क्योंकि बहुत, अगर हमने एक बार अपना जो सेशन किया था फूड प्रोसेसिंग में, दैट टाइम वी हैड हाईलाइटेड कि इतने फूड प्रोडक्ट्स हमारे हम प्रोड्यूस करते हैं, दे आर नॉट बीइंग यूज्ड एट द सेम टाइम. तो उनको प्रोसेस करके, प्रिजर्व करके एंड देन कैन बी यूज्ड लेटर ऑन. तो वो एक बहुत एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है. हैंडीक्राफ्ट्स की बात करते हैं क्योंकि अब जब हम देख रहे हैं कि हम रूरल एरियाज में जा रहे हैं, या और कहीं भी हम वेस्ट टू वेल्थ की बात करते हैं, या हम कहीं इस तरीके के, तो उसमें जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, चाहे वो टॉयज की बात कर रहे हों या डिफरेंट काइंड ऑफ डेकोरेटिव आइटम्स हैं जो वेस्ट मटेरियल से उग रहे हैं, दैट कैन बी ए गुड स्मॉल रिसाइकलिंग से जो प्रोडक्ट आपके आ रहे हैं. तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में यू थिंक एनी एरिया, there you'll find there will be possibility. के एरियाज में भी अब IT enabled like AI is there. वो भी है, वो सर्विस एरिया में आ जाते हैं. जब हम सर्विस सेक्टर की बात करते हैं तो उसमें तो बहुत सारा रिटेल की बात करते हैं, ई कॉमर्स की बात करिए, आप बैंकिंग सर्विसेज की बात करिए आप, और जैसे बहुत सारे अब जो रेस्टोरेंट्स हैं, कैफे हैं, अलग अलग तरीके के टी स्टॉल्स, चाय के अलग अलग तरीके के जो आप देखिए कि स्टार्टअप सेटअप हो रहे हैं, दे ऑल आर बेसिकली, अगर हम उनकी कहें, अगर हम ये कहें कि बहुत सारे जो आज के सक्सेसफुल स्टार्टअप्स हैं एक स्टेज पे, दे वर ऑल्सो इन द कैटेगरी ऑफ MSME, और उन्होंने एक छोटे छोटे प्लेटफॉर्म के रूप में, चाहे वो हम जोमेटो की बात करते हैं या इवन फ्लिपकार्ट की बात करते हैं, या हम जो महिंद्रा की बात करते हैं, ये ओला की बात करते हैं, ये सारे जो कहीं ना कहीं छोटे रूप में शुरू हुए और दे केम इन द कैटेगरी ऑफ MSME. नाउ दे आर वेरी सक्सेसफुल बिगर यूनिकॉर्न्स. राइट. ये एग्रीकल्चर एक फील्ड ऐसा है जिसमें बहुत सारे प्रोडक्ट बेस्ड भी हैं और सर्विस बेस्ड भी हैं. सो दीज ऑल आर दी पॉसिबिलिटीज फॉर MSME. एग्रीकल्चर के बहुत सारे हैं सर. एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग में आपको मिलेंगे बहुत सारे एरियाज वेयर यू कैन इनोवेट थिंग्स. ऑर्गेनिक में आप लोग जा रहे हैं, सो देर ऑल डिफरेंट काइंड ऑफ, इवन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिकल डिवाइसेस, सर्जिकल ग्लव्स, सर्जिकल इक्विपमेंट्स, एवरीथिंग. और ये कोरोना के बाद तो यू हैव सीन लॉट ऑफ PPP kits and gloves coming up and your masks coming up. They all started very small. And then telemedicine and diagnostic labs are coming up. On the health देखिए एग्रीकल्चर के केस में एक तो है कि आप यू कैन प्रोड्यूस सम प्रोडक्ट्स, मैन्युफैक्चर आप कर रहे हैं प्रोडक्ट. एक सर्विस भी, आपके पास बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, इनके पास कुछ प्रोडक्ट हैं एग्रीकल्चर के यूज होने वाले, यूटेंसिल्स हैं, अप्लायंसेज हैं, एंड मेनी अदर पीपल आर हैविंग. लेकिन वो कुछ ऐसा भी एक सेगमेंट है जिनके पास में वो प्रोडक्ट नहीं है. तो काइंड ऑफ सर्विस के इधर से उधर उनको अवेलेबल कराना, लोन पे हाई
दैट काइंड ऑफ दोज ऑल पॉसिबिलिटीज आर देयर. तो आप सोचिए कि अपने अराउंड, अपने आसपास में what kind of needs are there, what kind of problems are being faced by the people, और उन्हीं की need और problems के हिसाब से even gap areas को, because already there may be some service or some product may be available there, but अब आप देखिए कि उसमें क्या कोई ऐसा gap area है जो लोगों की need को पूरा नहीं कर रहा है. Can I think of making some improvement in that, and can I improvise the service? So these all possibilities are new solution for new any solutions. problem which और is there. आज आप उसको एक छोटे एमएसएमई के रूप में लेके चल रहे हैं. अगर आपका एकदम से बहुत अच्छा आइडिया है और आपका एंथुसियाज्म बहुत अच्छी है, यू वांट टू बिकम ए गुड सक्सेसफुल स्टार्टअप, तो आप उसको उस तरीके से भी आप इन फ्यूचर कर सकते हैं. So the government is supporting startups also with various schemes, like there is Startup India scheme and all. But on the other hand, there is a support to these smaller businesses which are starting on a small scale in the form of micro and small and medium enterprises. तो वो आप you can have a very innovative idea, you can start on a micro level and get it registered as a MSME also. नहीं, इसमें देखिए जिस जहां सपोर्ट की बात कर रहे हो कि गवर्नमेंट के बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जो एमएसएमई को एनकरेज करने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए लिए गए. जैसे फाइनेंशियल सपोर्ट की बात है. फाइनेंशियल सपोर्ट के बारे में आई होप यू विल टॉक अबाउट दैट इन डिटेल, कि कितनी स्कीम्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जहां पे वो फाइनेंशियल सपोर्ट दी जा रही है एमएसएमई सेटअप करने के लिए. बहुत सारे टैक्स बेनिफिट्स की बात करते हैं, बहुत सारे, वो भी सिविल टॉक इन डिटेल. टैक्स बेनिफिट्स, क्योंकि जब आप एमएसएमई रजिस्टर्ड हो जाते हैं तो उसके बाद में बहुत सारे आपके टैक्स स्लैब्स अलग हो जाते हैं, बहुत टैक्स से आपके रिवेट मिल जाता है, कई जगह आपको जीएसटी की जरूरत भी नहीं पड़ती है. ऐसी कई सारी सिचुएशंस हैं. ये भी हो रहा है कि बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज ट्राइंग टू प्रमोट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप. So what is happening? They are now skilling the youth of the country. उनको स्किल डेवलपमेंट भी किया जा रहा है कि आप एमएसएमई करिए, एंटरप्रेन्योरशिप अपना डेवलप करिए और अपना बिजनेस डेवलप करिए. इसके लिए लॉट ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आर देयर, कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स आर देयर. इवन हमारी यूनिवर्सिटी भी यू नो दैट वी आर ऑल्सो हैव बीन प्रोवाइडिंग डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रेनिंग, वर्कशॉप्स, अवेयरनेस प्रोग्राम कि क्या आप इस तरीके से कर सकते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ कैसे आपको बिजनेस प्लान बनाना है, किस तरीके से आइडिया जनरेट करना है. ये सारे, जैसे फॉर एग्जांपल हम एक बिजनेस प्लान कंपटीशन करते हैं, दैट इज द एम ऑफ दैट. इज ऐसा नहीं कि बिजनेस प्लान कंपटीशन में आपका बिजनेस सेटअप हो गया, स्टार्टअप सेटअप हो गया. एटलीस्ट जो उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं दे आर एबल टू नो द बेसिक्स ऑफ द बिजनेस प्लान, कि उसमें और से कौन से कंपोनेंट्स हैं जो हमें करने चाहिए. इंक्यूबेशन सपोर्ट भी एमएसएमई के लिए बहुत सारी होगी. सो दीज आर ऑल इनिशिएटिव्स. क्योंकि जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट किया जाता है तो वही एक तो रिस्क फैक्टर आ जाता है, और फिर फंडिंग के लिए स्टूडेंट्स परेशान हो जाते हैं कि फंडिंग कहाँ से मिलेगी, अब हमें एक्सपेंशन के लिए फंडिंग चाहिए. और दूसरा है सस्टेन करना अपने आप को, अलॉन्ग विद एक्सपेंशन, सस्टेनिंग एंड रेवेन्यू जनरेशन. सो आई थिंक रजिस्ट्रेशन एज अ एमएसएमई कैन हेल्प अ लॉट. इट कैन हेल्प एज अ लॉट. So would you please tell us what types of entities or companies are eligible for MSME registration? It can be as an individual also. Yeah. So, you know, there is a whole list of people. Anybody can register themselves as an MSME. And basically any individual, even a startup, as just sir mentioned, business owners, or it can be your public and private companies, your sole proprietorship, your partnership firms, limited liability partnerships, self-help groups, cooperative societies, trusts, they can all get into this registration process of MSMEs. अब जब हम रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं, एक चीज मैं आपसे और पूछना चाहूंगी, क्या ये मैंडेटरी है रजिस्ट्रेशन कराना? इट्स नॉट मैंडेटरी. दिस इज नॉट मैंडेटरी, नॉट इट्स नॉट ऑब्लिगेटरी. बट इफ यू वांट टू, अगर आप कोई टैक्स बेनिफिट, जैसे बहुत सारे आपको एडवांटेजेस मिलेंगे वंस यू रजिस्टर योरसेल्फ एज एन एमएसएमई, इन दैट केस इट इज वेरी एसेंशियल, वेरी यूजफुल. Okay. नहीं, देखिए अगर आपको लंबी दूरी तक जाना है तो आपको ये स्टेप लेना ही चाहिए. क्योंकि रजिस्ट्रेशन कराने का, एमएसएमई रजिस्टर्ड कराते हैं अगर आपकी कंपनी, आपने जो भी सोच लिया है बिजनेस का, क्या नाम है, किस तरीके का ब्रांडिंग देनी है, तो जैसे मैं पहले बता रहा था कि बहुत सारे बेनिफिट हैं. उसके बेनिफिट
आप कहीं लोन लेने जाएंगे तो आपको पहले प्रायोरिटी दी जाएगी। टैक्स बेनिफिट में आपको कई सारे कंसिडरेशंस मिलेंगे। अगर कहीं इवन स्टार्टअप के लिए अगर आप इनिशिएटिव लेते हैं देन ऑल्सो यू विल बी गिवन प्रायोरिटी। आपको बहुत सारे रिसोर्सेज आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम, अगर आपने रजिस्टर्ड करा लिया तो गवर्नमेंट के पास में एक डेटाबेस है कि किन किन ने हमारे यहाँ पर रजिस्टर्ड कराया हुआ है, तो उनमें से टाइम टू टाइम वो एक लॉट्स में बुलाते हैं, दे प्रोवाइड डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रेनिंग। यू कैन इवन पार्टिसिपेट इन डिफरेंट टेंडर्स जो गवर्नमेंट टेंडर्स निकालती है। अगर आप अदरवाइज करें तो इट इज वेरी डिफिकल्ट, बट सिंस यू आर अ रजिस्टर्ड एमएसएमई देन यू कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट इन सच टेंडर्स विच आर जो गवर्नमेंट निकालती है। अगर कोई बिजनेस चला रहा है और स्टार्ट किया है और उनको गवर्नमेंट स्पेशली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से टेंडरिंग प्रोसेस के थ्रू बिजनेस चाहिए, अपना एक्सपेंशन करना है, एक्सपोर्ट प्रमोशन में इनको बहुत हेल्प मिलती है। बहुत सारी इनको जो एक्सपोर्ट के बाद जो इनको इंसेंटिव्स मिलते हैं या जो टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं वो भी बहुत यूजफुल है फॉर एनी काइंड ऑफ एन एमएसएमई। मतलब कि चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग की इंडस्ट्री का हो या सर्विस इंडस्ट्री हो, होलसेल हो या रिटेल ट्रेड हो, कोई भी एमएसएमई एज एन एमएसएमई रजिस्टर कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ एक मैं सजेस्ट करूंगा, अगर किसी भी स्टूडेंट ने, किसी भी व्यूअर ने ये मन बना लिया है कि मुझे बिजनेस करनी है और कोई एक अच्छा आइडिया है जिसपे वो बिजनेस करना चाहते हैं, तो इट विल बी एडवाइज सजेस्टेड कि आप उसको रजिस्टर तो जरूर कराइए, क्योंकि रजिस्टर्ड कराने के जितने बेनिफिट्स हैं वो आपको तभी पता चलेगा जब रजिस्टर, क्योंकि बहुत सारे ऐसी इवेंट्स होती हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जहां क्लियर लिखा होता है कि ओनली द रजिस्टर्ड एंटिटीज विल बी अलाउड परमिटेड। तो आपको अदरवाइज अगर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बिजनेस कर रहे हैं, अगर आप एमएसएमई रजिस्टर्ड नहीं है या स्टार्टअप इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं है तो आपको वहां अलाउ ही नहीं किया जाएगा। आप बाकी बेनिफिट्स की बात छोड़ दीजिए, कम से कम इस तरीके की अपॉर्चुनिटीज को आप मिस ना करें, सो दैट यू आर गेटिंग द बेनिफिट ऑल दिस। तो आप जरूर रजिस्टर्ड कराइए। आप रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस, या ऑफ कोर्स। So, as we have been discussing about the MSME registration, बहुत ही सिंपल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है। प्रायर टू जुलाई 2020 पहले उद्योग आधार मेमोरेंडम was used to register as an MSME, but with effect from, as we just said, 1st July 2020, all existing MSMEs, जितने भी existing MSMEs हैं या जो new MSMEs हैं, they are required to obtain उद्यम registration, which is a simple online registration based on self certification. इसके लिए आधार नंबर इज वेरी मैंडेटरी फॉर ऑब्टेनिंग द उद्यम रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन। और जो एंटरप्राइजेज जिन्होंने उद्योग आधार मेमोरेंडम था जो प्रायर टू 2020 था, they also need to be re-registered for Udyam registration to avail the benefits which are provided by MSMEs. Here I also want to point out that जो आधार number है, when we are talking about if somebody is a sole proprietor, in that case that individual will be producing his आधार number. Now in case of Hindu undivided family, जो उनका जो करता है उसका आधार number use किया जाएगा, would be quoted. In case of a partnership firm, it would be the managing partner. लेकिन इफ वी आर टॉकिंग अबाउट अ कंपनी और अ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है या ट्रस्ट है, फिर आधार नंबर उसका यूज हुआ जाएगा हु इज द ऑथराइज्ड सिग्नेटरी फॉर दैट। एंड वी जस्ट मेंशन दैट हाउ यू हैव टू fill up the documents there and then, and you get an e-certification after you have registered yourself. And the registration number, I guess, is it some 10 or 12 Yeah, it's about 12 digit number. 12 digit number registration is number. this Udyam registration number. Or you will also get a e-certificate भी आपको मिलेगा एक बार आप उस पोर्टल पे जाके अगर रजिस्ट्रेशन करते हैं तो। इसमें इनफैक्ट दो चीजें हैं। एक तो ये है कि मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आपने मन बना लिया है कि अपना एमएसएमई कोई है प्लान में तो उसको रजिस्टर कराना है, तो एक सजेस्टिव ये रहेगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो उद्यम registration.gov.in जो पोर्टल है वहां जाकर के एक बार जरूर विजिट कर लें और देखें कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की हमें जरूरत है। उन डॉक्यूमेंट्स में चाहे वो आपका आइडेंटिटी कार्ड हो, पैन कार्ड हो या एड्रेस प्रूफ हो या आपका बैंक अकाउंट की डिटेल्स हो, ये सारी चीजें जो भी लिस्ट है, लिस्ट बनाने के बाद में बेटर टू कलेक्ट द डॉक्यूमेंट्स इन योर सिस्टम, ताकि जब आप रजिस्टर कर रहे हैं तो डॉक्यूमेंट्स आपके एकदम से हैंडी हों और आप तुरंत उनको सबमिट अपलोड कर पाए जब जहां जरूरत पड़ रही है। तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी लिस्ट बना करके और फिर उनको अपने कंप्यूटर सिस्टम में स्टोर कर लें।
और जब जब रजिस्ट्रेशन करने बैठ रहे हैं आपको जहां जरूरत पड़ रही है यू कैन इजीली अपलोड दोज डॉक्यूमेंट्स, एक बात। दूसरी बात ये भी है क्योंकि जब आपने मन बना लिया है तो आप अपना जो बिजनेस आइडिया है या बिजनेस का उसका एक नाम भी कुछ सोच के रखें कि मुझे क्या करना है, किस एरिया में काम करना है, वो भी एक बहुत जरूरी है। बाकी तो आपने बताया कि बहुत सिंपल है क्योंकि गवर्नमेंट ने जो पोर्टल बना है वो उसमें स्टेप्स भी इतने यूजर फ्रेंडली हैं कि देयर इज नो प्रॉब्लम। बट इम्पोर्टेंट थिंग इज कि जो डॉक्यूमेंट की जरूरत है उनको आप पहले से अपने तैयार रखिए सो दैट यू कैन अपलोड देम एट द राइट टाइम। सो आई थिंक इट्स वेरी सिंपल। अगर हम इसके बेनिफिट्स की बात करें कि क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, दो हमने उसको ब्रीफली टच अपॉन किया है, बट फिर भी एक बार आप अगर उस पे थोड़ी और जानकारी देना चाहें तो seeing today's scenario, आज का जो scenario है, everybody wants to be self-reliant, you know, and that is what our प्रधानमंत्री is also promoting, आत्मनिर्भर भारत। तो उसके लिए you know MSMEs is the best option, मुझे जहाँ तक लगता है। और आज के scenario में it has got lot of significance and lot of relevance. Now, we can say that the micro, small and medium enterprises, they are the engines of economic growth and development. Besides reducing the scale of poverty, these enterprises, they are major contributors to employment generation and the GDP. Very true. So briefly, I'll just touch upon some of the significance of how MSME is very significant in today's present times. As I mentioned that these are the engines of growth. They contribute to the manufacturing sector and many of them are also engaged in the production as well as the processing activities. So, इस तरीके से they are, boosting up your economic growth. Then they are very helpful in generating employment. आज का जो हमारा youth है, if they are attached to some MSME or if they work in some MSME, तो एक तो उनको स्किल, वो जो जॉब सर ने बात करी कि वी आर लुकिंग फॉर स्किल मैन पावर, एक तो वो भी हो जाता है, प्लस दे जनरेट लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। नाउ इसमें MSME का जो रोल है, इट इज वेरी क्रिटिकल by contributing to employment generation. Now when we see most of the formal jobs which are available in the markets, they are all created by MSMEs. All formal kind of jobs are created by MSMEs. And the advantage of the MSME sector is its potential to generate employment, as I've been saying, at a very low capital expenditure. हमारी जो इकोनॉमी है, इट इज अ वेरी लेबर इंटेंसिव इकोनॉमी. एट वेरी चीप लेबर वी कैन गेट लॉट ऑफ वर्क डन. तो इनिशियली द स्टार्ट वी नो कि इतने आसानी से लेबर मिल जाता है एंड यू गेट लेबर हुआ स्किल लेबर. तो अगर हम उसका यूसेज लें, एक तो उनको एम्प्लॉयमेंट भी मिल जाती है एंड प्लस they will also help in your process of your manufacturing. So we can say that MSMEs, they absorb a lot of labor force. And at the same time, they will also help in correcting the regional imbalances and poverty alleviation. These are all, some sustainable development goals, which I'll also be taking up. How MSMEs are able to, correct all these regional imbalances. Another very significance of this MSME in present times, मुझे लगता है, is promotion of entrepreneurship and innovation. Now, we can say, initially sir ने जब बोला था, MSMEs we can say they are the grounds for any kind of entrepreneurship. And new entrepreneurs, they bring forth lot of innovation, lot of ideas, lot of skills. So MSME एक ऐसा platform है which provides opportunities for the budding entrepreneurs to build creative products, boosting their business competition and fueling the growth. Another very significant of the MSME in present times is they contribute to sustainable development. बहुत से हमारे SDG goals हैं जिसमें से they are providing lot of inclusive growth by providing employment opportunities in the rural sectors, especially to people who are belonging to the weaker section of the society. Now, when we're talking about sustainable development goals, we can say that with coming up of MSMEs, they can be related to poverty alleviation, which is the SDG goal 1. अगर आप किसी MSME के साथ जुड़ जाते हैं तो definitely आपका poverty, you can reduce your poverty alleviation that way. You can reduce hunger. You're giving jobs to people. You are ensuring better health conditions. You are removing gender bias inequalities. You are providing decent work environment to the people.
So these are all the benefits, that MSMEs are contributing as far as your sustainable development goals are concerned. And of course, they're also contributing to export significantly, because as initially जब सर ने बताया था कि, या आपने ही शायद बताया था कि MSME related product जो total exports है, I think so in India from 2018-19 was around 48%, and in September 23 it is about 46.7%. So काफी इनका योगदान है. So we can see that how they significantly are impacting, all these SDG goals and even creating employment opportunities. They are the engines of growth. They bring about a lot of innovations. So जब ये MSME रजिस्ट्रेशन की हम बात करते हैं, जो हम कह रहे हैं, तो उसमें एक तो आपने बताया कि लोन्स के लिए एक्सेस मिल जाता है, तो कोलेटरल फ्री लोन्स मिल जाते हैं, क्रेडिट्स, देन दे आल्सो बिकम एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन वेरियस गवर्नमेंट प्रोक्यूरमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड टेंडर्स आल्सो, and then they get priority in land allocation also. इनफैक्ट अगर उसको हम समराइज करें तो हम ये कह सकते हैं कि MSME रजिस्ट्रेशन का जो बेनिफिट है, सबसे पहला बेनिफिट तो ये होता है कि गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं बहुत सारी, चाहे वो फाइनेंस से रिलेटेड हो, टैक्स बेनिफिट की हो या प्रायोरिटी प्रोक्योरमेंट की बात हो, उनमें उनको एक प्रायोरिटाइजेशन मिलता है, बेनिफिट मिलते हैं और इंसेंटिव्स भी मिलते हैं. दूसरा एक जो लीगल रिकॉग्निशन आपकी, चूंकि वो कंपनी जो भी आपने एंटिटी है वो रजिस्टर्ड करा लिया, तो नाउ इट इज ए लीगली रिकॉग्नाइज्ड, और उसको कई सारे के प्रोटेक्शन भी मिलते हैं आपको, चाहे वो लीगल एंटिटी की फॉर्म में हो, लिमिटेड लाइबिलिटी की बात कर रहे हो या ब्रांड रिकॉग्निशन की भी बात करते हैं. क्योंकि आपने अगर कोई भी बिजनेस शुरू किया एंड विदाउट रजिस्ट्रेशन अगर उसको शुरू कर दिया, तो कल को आप यू कैन नॉट क्लेम कि वो आपका ब्रांड है जब तक आपको पेटेंट नहीं कराएंगे या ब्रांड वहां नहीं कराएंगे. एटलीस्ट रजिस्ट्रेशन कराने के बाद में आपका एक क्लेम बन जाता है, तो आपका ब्रांड रिकॉग्निशन भी होता है. थर्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक्सेस टू रिसोर्सेज एंड सपोर्ट, जो मैं बता रहा था कि बहुत सारी, चाहे वो ट्रेनिंग प्रोग्राम की बात हो या गवर्नमेंट सपोर्ट की बात हो या इवन नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी. क्योंकि व्हेन यू आर पार्टिसिपेटिंग इन डिफरेंट प्रोग्राम्स, कहीं MSME रजिस्टर्ड जो उनके ओनर्स हैं, उनका एक अगर कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है, सम्मेलन हो रहा है, एंड यू आर पार्टिसिपेटिंग देयर, तो वो देखिएगा उस समय कितनी आपकी नेटवर्किंग हो सकता है. आपके जो जिस प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं, जिस एरिया में काम कर रहे हैं, उसके कहीं आपको कस्टमर मिल जाएं या B2B वाले जो आपका बिजनेस टू बिजनेस नेटवर्किंग की अपॉर्चुनिटीज मिल जाएं. कई बार टेक्नोलॉजी सेमिनार्स, इंटरनेशनल फेयर्स, जो एग्जीबिशंस लगते हैं, अगर आपको शोकेस करना है, अगर आप रजिस्टर्ड हैं तो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी. और अगर वहां पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आपको कई बार देख करके टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन का भी एक आइडिया मिलता है. अच्छा, उन्होंने इस तरीके से कर रहा है, तो कैन आई ऑल्सो डू दिस काइंड ऑफ थिंग इन माय. गवर्नमेंट से इंसेंटिव्स भी मिलते हैं टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के लिए भी. और फोर्थ जो बेनिफिट की हम बात करते हैं, मैंने कहा था कि इजियर एक्सेस टू क्रेडिट्स, चाहे वो आपने कहा कि कोलेटरल फ्री लोन्स की बात करें, गवर्नमेंट गारंटी स्कीम्स की बात करें, तो वहाँ ये MSME रजिस्ट्रेशन के बाद ही मिलता है. बैंक से भी अगर आपको लोन मिल रहा है, कोलेटरल फ्री लोन. और सिंप्लीफाइड प्रोसीजर्स अगर हम देखें कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस तो बहुत सिंप्लीफाइड है ही है, नो डाउट, लेकिन जब आप MSME रजिस्टर्ड हो जाते हैं तो आपके और किसी डायरेक्शन में जाने के लिए जो प्रोसेसेस है बहुत सिंपल हो जाते हैं. एक तो एलिजिबिलिटी आपकी बन जाती है, आपको एक्सेस बहुत आराम से मिल जाती है, ये बहुत सारे हैं, और बहुत सारे जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो उनसे भी आपको छुटकारा मिल जाता है. और है डॉक्टर शर्मा, जो जैसे भी कोई बिजनेस ऐसा होता है, उसके लिए आपको लैंड की जरूरत होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है, तो वो वहां पे भी आपको गवर्नमेंट सपोर्ट मिल जाती है. अगर आप रजिस्टर्ड MSME हैं तो आपको कहीं ना कहीं वहां प्रायोरिटी मिलेगी. और जो आपका रजिस्टर्ड होने के बाद में ये भी एक पॉसिबिलिटी बनती है कि आपका जो मार्केट है, क्योंकि आप फ्रीली अपनी बिजनेस कर सकते हैं, तो आपका जो मार्केट है, एक्सेस मार्केट रीच, वो भी बढ़ेगी आपकी. और एक जैसे आपने कहा कि आप JM पे रजिस्टर्ड कर सकते हैं, गवर्नमेंट ऑथराइज्ड जितने भी पोर्टल्स हैं वहां रजिस्टर्ड कर सकते हैं, तो आपका जो वेंडर रजिस्ट्रेशन, वेंडर रिकॉग्निशन है, वो भी बढ़ जाता है. क्योंकि अगर आप सिंपली इफ आर नॉट रजिस्टर्ड विद MSME और आप बहुत अच्छा काम, बहुत अच्छा प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो आई थिंक हो सकता है आपको वहां मौका ही नहीं मिलेगा कहीं पे अपनी बात को करने का. मेहनत करनी पड़ेगी, तो आपको डोर टू डोर जाइए, अलग अलग तरीके से करिए. तो इफ यू आर रजिस्टर्ड विद MSME तो आपको ये बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे. एक चीज और है जो आपने पहले मेंशन की थी, टैक्सेशन में डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस में आपको लॉट ऑफ एग्जाम्पशन यू गेट. यस.
ये जो बेनिफिट्स हैं एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के लिए, और मैं शुरुआत में कह रहा था कि अगर आप बहुत बड़ा एक प्लान कर रहे हैं, ड्रीम कर रहे हैं कि स्टार्टअप के लिए लॉन्ग टर्म, तो आज की डेट में इफ यू स्टार्ट विद एमएसएमई देन आई थिंक इट विल बी द फर्स्ट स्टेपिंग स्टोन इन दैट डायरेक्शन। फिर वहां से आप एक्सपीरियंस लीजिए, लर्न करिए, फिर सोचिए कि उसमें मुझे किस तरीके से और इनोवेटिव कर सकता हूं मैं, हाउ कैन आई मीट द नीड ऑफ द पीपल, हाउ कैन आई फिल अप द गैप इन दैट एरिया, और उस तरीके का इनोवेटिव एक अपनी अप्रोच लेते हुए देन यू कैन स्केल इट अप फर्दर, और फिर आपका एक बहुत बड़ा अच्छा स्टार्टअप भी हो सकता है, जो हमारा अल्टीमेट एम हमारा इग्नू का हमारे स्टूडेंट्स के लिए है कि यू शुड कम एज ए सक्सेसफुल स्टार्टअप। तो उस डायरेक्शन में एमएसएमई आई थिंक विल बी ए वेरी गुड बिगनिंग। अब इसमें देखें तो गवर्नमेंट की पॉलिसी सपोर्ट बहुत जबरदस्त है एमएसएमई के लिए। तो कई सेक्टर बेस्ड कई स्कीम्स हैं, जैसे पीएलआई प्रोग्राम्स हैं, इंसेंटिव टारगेटिंग स्पेसिफिक रीजन्स लाइक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा आप बताइए। यस, फर्स्ट ऑफ ऑल गवर्नमेंट हर लेवल पे इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट देता है फॉर स्टार्टिंग अप एन एमएसएमई। They give support at the national level, they give support at the state level, and they give support at the district level. वो तो बहुत लंबा है, but very briefly I will just touch upon some few government institutions that are providing financial assistance for MSMEs in India. Now, first is the Credit Guarantee Fund Scheme for Micro and Small Enterprise. Now, this is a scheme which provides credit guarantees for collateral-free term loans to MSMEs. तो अगर आप रजिस्टर होते हैं एंड इफ यू टेक अप दिस काइंड ऑफ अ स्कीम, तो दिस इज वेरी यूजफुल। देन देयर इज प्रधानमंत्री मुद्रा योजना which provides loans of up to 10 lakhs to non-corporate, non-farm, small micro enterprises. Then there is an emergency credit line guarantee scheme which is also called as ECLGS. This also provides collateral-free automatic loans to business including MSMEs. Then there is MSME Funds of Funds which provides equity infusion of 50,000 crores. Then there is a special refinancing facility which provides 15,000 crore to small business and small industries development bank of India. They help in refinancing the facilities. तो ये बहुत सारी स्कीम्स हैं विच माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम भी है जिसमें क्लस्टर्स डेवलप किए जा रहे हैं। हाँ, बहुत सारी हैं। उसके अलावा बहुत सारी स्कीम्स हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम है, देयर इज एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, देन देयर आर असिस्टेंस टू ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन स्कीम्स, देयर इज स्किल अपग्रेडेशन एंड महिला कोयर योजना, there is procurement and market support schemes, then there is MSME champion schemes, there is national SC/ST hub schemes. बहुत सारे जो हमारे SC/ST जो who want to start up their own hubs, for them also there is some specialized schemes. Then there is a scheme for even for people who are residing in the northeastern region. For women also there are different schemes. There is one thing which is coming to my mind at this point is हमारे आर्टिसंस को लेकर भी कई ये एमएसएमईज हैं बहुत सारे, और गवर्नमेंट के इसकी तरफ भी बहुत पुश है, और हमारे कई स्टूडेंट्स ऐसे आइडियाज लेकर आते हैं जो वो ग्रास रूट से आर्टिसंस को कनेक्ट करके उनके लिए मार्केट और सप्लाई चेन बनाना चाहते हैं। दे वांट टू यूज टेक्नोलॉजी ऑल्सो। आई थिंक एमएसएमई की स्कीम से जुड़ना उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है। एस्पायर एक करके उनकी स्कीम है विच इज कॉल्ड एज अ स्कीम for promotion of innovation, rural industries and entrepreneurship. So these are all the different kind of schemes, जो बहुत strengthen करती हैं for any person to start up. कई बहुत सारी स्कीम ऐसी हैं जो एरिया स्पेसिफिक हैं, जी, जेंडर स्पेसिफिक भी है, और कम्युनिटी स्पेसिफिक भी है। जैसे अगर आपने एरिया की बात करते हैं, नॉर्थ ईस्ट के लिए भी स्पेशलाइज्ड स्कीम्स हैं जो इस एरिया में काम कर रही हैं। अगर हम जेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो विमेन एम्पावरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कई सारी स्कीम्स हैं जो कि एमएसएमई और एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए की गई हैं। ऐसी अगर इन पे हम, क्योंकि बहुत लंबी लिस्ट है, अगर जरूरत पड़ी तो एक सेपरेट प्रोग्राम हम केवल इसी पे बात कर सकते हैं कि व्हाट आर डिफरेंट। ये कि आप अगर आर्टिसंस, हैंडीक्राफ्ट्स या विमेन ग्रुप्स के साथ काम करना चाहते हैं, ग्रुप्स हैं, हाँ, तो ये बहुत अच्छा एवेन्यू हो सकता है। नटसेल ये कह सकते हैं कि अगर आप एमएसएमई के डायरेक्शन में जा रहे हैं, रजिस्टर्ड कराते हैं, आपके पास एक अच्छा आइडिया है, तो स्कीम्स बहुत सारी बहुत सारी सपोर्ट स्कीम्स हैं, एंड दैट आई थिंक वी विल हैव टू हैव ए सेपरेट सेशन ऑन दी
द गवर्नमेंट स्कीम्स फोकसिंग ऑन एमएसएमई, वो हम right. डिटेल में बात करेंगे। पर ये अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं, स्कोप बहुत है, बहुत सारी सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज। डॉक्टर शर्मा, ब्रीफली क्या आप वो स्टेप्स इलस्ट्रेट करेंगे हमारे व्यूअर्स के लिए कि अगर कोई आइडिया आता है किसी के पास, तो वो एमएसएमई एज अ एमएसएमई वो बनाना चाहता है, एक स्टार्टअप, एक सक्सेसफुल बिजनेस, बट वो क्या स्टेप्स हैं कि वो एज अ एमएसएमई रजिस्टर कर सकता है, हाउ टू गो अबाउट इट briefly, though we tell our students every time, but now with the focus on the MSME aspect of it. देखिए, सबसे पहला जो मैं हमेशा बात करता हूं कि आप एक आइडिया देखिए, क्या आपका आइडिया है, किस तरीके के, किस फील्ड में आप काम करना चाहते हैं, और उसकी जो मार्केट नीड क्या है। आइडेंटिफाई द मार्केट नीड ऑफ योर आइडिया, जिसमें आपको रिसर्च करने की जरूरत पड़ सकती है, कस्टमर्स की नीड को भी आपको स्टडी करना पड़ सकता है, प्रेफरेंसेस क्या हैं, उनके ट्रेंड्स क्या हैं, आपकी जो एक्सपर्टाइज क्या है, आपका किस तरीके का रिसोर्सेज हैं, आपकी कैपेबिलिटीज क्या हैं, उनको देखिए, और ऐसी कौन सी अनमेट नीड्स हैं जिनको आप करना चाहते हैं। तो पहला स्टेप है आइडेंटिफाई द मार्केट नीड्स एंड देन डेवलप ए बिजनेस प्लान। जो आपने आइडिया सोचा है उसके हिसाब से आप एक बिजनेस प्लान डेवलप करिए, और उस बिजनेस प्लान में ये बहुत क्लियरली आउटलाइन होना चाहिए कि व्हाट इज द गोल ऑफ योर बिजनेस और एंटरप्राइज, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, टारगेट ग्रुप कौन सा है आपका, फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस क्या हैं, कहां से आप फाइनेंसेस लाएंगे, कैसे उनको अर्न करेंगे, किस तरीके से प्रॉफिट अर्न करेंगे, ये सारी चीजें आपके बिजनेस प्लान में आनी चाहिए। और फिर यही नहीं, केवल आपको ये भी देखिए कि फ्यूचर रोड मैप क्या होगा, नॉट ओनली फॉर 6 मंथ और 1 ईयर, मतलब आगे, क्योंकि आपको उसको बहुत आगे लेके जाना है, तो यू शुड थिंक ऑफ द फ्यूचर रोड मैप ऑल्सो, कि कैसे उसको आप सेल्फ सस्टेनिंग बनाएंगे। थर्ड जो स्टेप आता है वो है सुटेबल बिजनेस स्ट्रक्चर, आपका क्या होगा, किस तरीके से आप बिजनेस करेंगे। आपका, जैसे आपने आप बता रही थी, सोल प्रोप्राइटरी रखेंगे या एलएलपी रखेंगे या एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रखेंगे, किस तरीके से, मतलब दैट विल डिपेंड कि आपके अगर पार्टनर उस तरीके के हैं, मिलकर के काम करना चाहते हैं तो, या आप अकेले करना चाहते हैं तो उस तरीके से आपका बिजनेस स्ट्रक्चर क्या होगा, दैट यू हैव टू डिसाइड, एंड देन अकॉर्डिंगली आपको उसको रजिस्ट्रेशन के लिए जाना चाहिए, क्योंकि जब हम एमएसएमई की बात करते हैं। एंड देन ये भी आप सोचिए कि आपकी जो फंडिंग कहाँ से किस तरीके की होगी, हाउ विल यू गेट द फंडिंग, सेल्फ फाइनेंसिंग होगी या कहीं इन्वेस्टर आप देखेंगे, या आप लोन लेंगे, ग्रांट्स लेंगे, सब्सिडीज लेंगे, किस तरीके से आप उसको करेंगे, ये भी आपको वर्कआउट करना पड़ेगा व्हेन यू आर थिंकिंग ऑफ सेटिंग अप ए एमएसएमई। और इसी स्टेज पे मैंने जो रजिस्ट्रेशन की बात करी है कि आपको रजिस्टर्ड कराना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आपने इस तरीके का सोच लिया है, प्लान बना लिया है और इतना बिजनेस प्लान के साथ में आगे बढ़ गए हैं, देन इट इज गुड टू रजिस्टर। और रजिस्ट्रेशन के लिए काफी डिटेल में हमने बात करी है, रजिस्ट्रेशन में कोई फीस नहीं लगती, और फीस नहीं है, और आप अगर है तो उसको बना लीजिए। और रजिस्ट्रेशन के बाद में आपके लिए जो जितनी अपॉर्चुनिटीज खुल जाती हैं, जितने मौके खुलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से टू पार्टिसिपेट इन डिफरेंट प्रोग्राम्स, इवेंट्स एंड दोज, वो तो एक बहुत अलग तरीके की लर्निंग होगी उससे। देन सेटअप योर ऑपरेशंस, क्योंकि ये भी बहुत जरूरी है कि आपने सब कुछ कर लिया और रजिस्ट्रेशन करा के छोड़ दिया, देन इट्स नॉट सफिशिएंट। कहीं ना कहीं आप उसको स्टार्ट जरूर करिए, आप करना चाहते हैं कि किस तरीके से। यहाँ पर आती है कि ऐसा भी होना चाहिए, कोई रिक्वायरमेंट है कि बिजनेस रनिंग होना चाहिए, 5 years या 10 years से बिजनेस चल रहा होना चाहिए, कोई ऐसी रिक्वायरमेंट तो नहीं है ऐसा कुछ नहीं है। बट इफ यू आर गोइंग इनटू सम इनोवेशन, जैसे वी आर टॉकिंग अबाउट इनोवेशंस, आप इनोवेशन अपने प्रोडक्ट में करना चाहते हैं, ऑलरेडी वो चल रहा हो, नाउ यू वांट टू टेक इट एज एन एमएसएमई, तो प्रोडक्ट या कोई सर्विस हो या कोई बिजनेस प्रोसेस हो या कोई। So thank our viewers for joining in, and we'll meet you soon with the next episode. Thank you so much. नमस्कार।